Hello friends, welcome back to Rahul English Study. Today we are going to discuss much ado about nothing summary in Hindi. So let's start. Much ado about nothing is a comedy by William Shakespeare, thought to have been written in 1598 and 1599. The play was included in the first folio published in 1623. Important character. Important characters. Benedict. Benedict, a lord and soldier from Padua, companion of Don Pedro. Beatrice, niece of Leonato. Don Pedro, Prince of Aragon. Prince of Aragon, Don Pedro. Don John, the bastard prince, ब्रदर ऑफ डन पैड्रो, यानी डन पैड्रो का भाई है जो कि बास्टर्ड प्रिंस है। नेक्स्ट क्लॉडियो, क्लॉडियो ऑफ फ्लोरेंस, ए काउंट, कंपेनियन ऑफ डन पैड्रो, फ्रेंड टू बेनेडिक्ट। लियोनार्डो, गवर्नर ऑफ मैसिना, Hero's father. Leonato, Hero's father, governor of Messina. Antonio, brother of Leonato. Balthasar, attendant on Don Pedro, a singer. Balthasar is a singer. Borachio, follower of Don John. Conrad, follower of Don John. Next character, Inogen, a ghost of character in early editions as Leonato's wife. Hero, daughter of Leonato. Margaret, waiting gentlewoman, attendant on Hero. Ursula, waiting gentlewoman, attendant on Hero. Dogberry, the constable in charge of Messina's night watch. Varghese, the head borough, Dogberry's partner. Varghese, the head borough, Dogberry's partner. Friar Francis, a priest. A sexton, the judge of the trial of Borachio. A boy serving Benedict. The watchman of Messina, attendants and messengers. Date premiered 1600. Original language early modern English. Genre comedy. Setting Messina, Italy. Now, friends, summary. A kind-hearted minister named Leonato lived in the city of Messina, Italy. He belonged to a very elite family and was very close to the prince there. Leonato नाम के एक उदार मंत्री इटली मैसना में शहर में रहते थे और वे काफी संभ्रांत घराने से थे और वहां के प्रिंस उनके काफी करीब थे।
He had a very beautiful daughter named Hero. उनकी हीरो नाम की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी. His brother Antonio and his daughter Beatrice also lived in his house. यानी उनके घर में उनका भाई एंटोनियो और उसकी बेटी बीट्राइस भी रहती थी. बीट्राइस वॉज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल. बीट्राइस भी बहुत ही सुंदर थी. बट शी वॉज आल्सो वेरी प्लेफुल. लेकिन वह चंचल थी. लेकिन वह बहुत ही चंचल थी. ही लव्ड सार्कास्म. She loved sarcasm and joking. उसे व्यंग और मजाक करना बेहद पसंद था. Along with these members, इन सदस्यों के साथ लियोनार्डो also had two maids named Margaret and Ursula in his household who took care of Hero. और इन सदस्यों के साथ लियोनार्डो के घर में मार्गरेट और उर्सुला नाम की दो सेवकाएं भी रहती थी जो हीरो की देखभाल किया करती थी. One day a messenger brings news that some of Leonardo's friends had returned home after winning the war. एक दिन एक मैसेजर खबर लेकर आता है और कहता है कि लियोनार्डो के कुछ दोस्त युद्ध जीतने के बाद वापस घर आ गए हैं या घर आ गए थे. एंड टुडे दे वर कमिंग टू मीट हिम एट हिज हाउस. और आज वे उनसे उनके घर आ रहे थे. हियरिंग दिस न्यूज, यह खबर सुनकर लियोनार्डो स्टार्ट्स प्रिपरेशंस टू वेलकम हिज फ्रेंड्स. यह खबर सुनकर लियोनार्डो अपने दोस्त के स्वागत करने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं. एवरीवन रीच देयर विद इन सम टाइम. और कुछ ही देर में सब लोग वहां पहुंच जाते हैं. Among them was Leonardo's close friend Prince Don Pedro. और उनमें लियोनार्डो के करीबी दोस्त राजकुमार डन पेड्रो थे. एंड विद देम वर टू हैंडसम यंग मैन. और उनके साथ दो हैंडसम नौजवान बेनेडिक्ट एंड क्लाडियो. तो और उनके साथ दो हैंडसम नौजवान बेनेडिक्ट और क्लाउडियो थे. Both of them were very skilled commander. और वे दोनों बहुत ही कुशल सेनापति थे. Apart from this, Don John had also come with him. और इसके अलावा उनके साथ डन जॉन भी आया हुआ था. He was the illegitimate brother of Don Pedro, जो कि डन पेड्रो का अवैध भाई था. He was very poisonous and cunning by nature. और वह स्वभाव से बहुत ही विषैला और धूर्त किस्म का था. And he was the main villain of this play. जो कि वह इस प्ले का मुख्य विलेन था, यानी मुख्य खलनायक था.
लियोनार्डो गिव्स ए ग्रैंड वेलकम टू ऑल हिज फ्रेंड्स। लियोनार्डो अपने सभी दोस्तों का भव्य स्वागत करते हैं। एंड एवरीवन एंजॉय द फीस्ट, और सब लोग इस फीस्ट का आनंद लेते हैं। मीनवाइल क्लॉडियो फॉल्स इन लव विद हीरो एज सून एज ही सीज हर। इसी बीच क्लॉडियो और हीरो एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं। हीरो आल्सो फॉल्स इन लव विद हर, और हीरो भी उसे दिल दे बैठती है। दे बोथ स्वीयर लव फॉर ईच अदर एंड आल्सो डिसाइड टू गेट मैरिड। और वो दोनों एक दूसरे के साथ कस्में और वादे करते हैं और शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, बेनेडिक्ट एंड बीट्राइस ऑलरेडी न्यू ईच अदर। दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ ईच अदर। इसके विपरीत बेनेडिक्ट और बीट्राइस पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे, अर्थात एक दूसरे को जानते थे, और वे एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। बीट्राइस टेल्स बेनेडिक्ट, बीट्राइस बेनेडिक्ट से कहती है दैट कि ही इज नॉट ए गुड सोल्जर, वह एक अच्छा सैनिक नहीं है। While Benedict says that Beatrice knows nothing but joking, लेकिन जबकि बेनेडिक्ट कहता है कि बीट्राइस को मजाक करने के अलावा आता ही क्या है। इन दिस वे, इस तरह, द वेंटर बिटवीन द टू कंटिन्यूड, इस तरह से दोनों के बीच हंसी मजाक लगातार चलती रहती है। देन क्लॉडियो अराइव्स टेल्स बेनेडिक्ट, और तभी क्लॉडियो आकर बेनेडिक्ट को बताता है दैट कि शी हैज डिसाइड टू मैरी हीरो, कि उसने हीरो से शादी करने का फैसला ले लिया है। बेनेडिक्ट सेज marriage is a useless thing, he will never marry। और बेनेडिक्ट कहता है कि शादी बेकार चीज है और वह तो कभी शादी ही नहीं करेगा। बट डन पेड्रो लॉफ्स, लेकिन डन पेड्रो हंसते हुए एंड सेज, और हंसता है और कहता है दैट कि व्हेन ही फाइंड्स ए सुटेबल गर्ल ही टू विल फॉल इन लव एंड ही विल आल्सो गेट मैरिड। हंसते हुए डन पेड्रो हंसते हुए कहता है कि जब कोई अनुकूल लड़की मिल जाएगी तो उसे भी प्यार हो जाएगा और वह भी शादी कर लेगा। एवरीवन laughs at this, इस पर सभी हंसने लगते हैं। क्लॉडियो एंड हीरोज वेडिंग इज शेड्यूल्ड फॉर ए वीक later, और इसी बीच क्लॉडियो और हीरो की शादी एक हफ्ते के बाद तय होती है। मीनवाइल ऑल द फ्रेंड्स मेक प्लान्स, और इसी बीच सब दोस्त प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। एवरीवन न्यू दैट बेनेडिक्ट एंड बीट्राइस लाइक्ड ईच अदर एंड दे हैड गुड केमिस्ट्री, और सबको ये पता था कि बेनेडिक्ट और
बीट्राइस एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और उनमें अच्छी केमिस्ट्री थी, यानी उनमें काफी अच्छा तालमेल था। That's why they wanted both of them to stop joking and fighting with each other like this and marry each other। और इसीलिए वे चाहते थे कि वे दोनों एक दूसरे से इस तरह मजाक करना और लड़ना छोड़ दें और एक दूसरे से शादी कर लें। अकॉर्डिंग टू द प्लान, योजना के अनुसार, वन डे ऑल द फ्रेंड्स टेक बेनेडिक्ट नियर ए विंडो। एक दिन सब दोस्त बेनेडिक्ट को खिड़की के पास लेकर जाते हैं। बीट्राइस एंड मार्गरेट वर टॉकिंग इनसाइड। और अंदर बीट्राइस और मार्गरेट की बातें हो रही थी। मार्गरेट वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्लान। और इस प्लान में मार्गरेट भी शामिल थी। सी आस्क्ड हिम अबाउट बेनेडिक्ट। और वह उससे बेनेडिक्ट के बारे में पूछती है। एज दे टॉक, बातों बातों में बीट्राइस कन्फेस, स्वीकार कर लेती है दैट सी रियली लव बेनेडिक्ट, कि वह वास्तव में बेनेडिक्ट से प्यार करती है। एंड सी कीप्स टीचिंग हिम ओनली जोकिंगली। और वह सिर्फ मजाक में ही उसे टीज किया करती है, उसको चिढ़ाया करती थी। हियरिंग दिस, बेनेडिक्ट स्टैंडिंग आउटसाइड बिकम्स वेरी हैप्पी। और यह सुनकर बाहर खड़ा बेनेडिक्ट बहुत खुश हो जाता है। सिमिलरली, इसी तरह मार्गरेट आल्सो ब्रिंग्स बीट्राइस आउट ऑफ बेनेडिक्ट्स रूम। और इसी तरह से मार्गरेट भी बीट्राइस को बेनेडिक्ट के कमरे के बाहर ले आती है। शी आल्सो overhears Benedict boasting to his friends that he also likes Beatrice and also loves with all his heart। और वह भी बेनेडिक्ट को दोस्तों के सामने बोलते हुए सुन लेती है कि वह भी बीट्राइस को पसंद करता है और दिल से प्यार भी करता है। बीट्राइस आल्सो बिकम्स हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस। और ये सुनकर बीट्राइस भी खुश हो जाती है। बेनेडिक्ट एंड बीट्राइस देन मीट ईच अदर अलोन। और इसके बाद बेनेडिक्ट और बीट्राइस एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं। एंड कन्फेस दियर लव फॉर ईच अदर। और एक दूसरे के लिए अपना प्यार कबूल कर लेते हैं। देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर। और सब तरफ यानी चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, अर्थात चारों तरफ खुशी का माहौल था। बट डन जॉन वॉज नॉट हैप्पी विद ऑल दिस। लेकिन डन जॉन इन सब बातों से खुश नहीं था। ही वॉज थिंकिंग हाउ टू ब्रेक अप क्लॉडियो एंड हीरोज मैरिज। और वह सोच रहा था कि कैसे क्लॉडियो और हीरो की शादी तोड़वाई जाए। एंड लेट लियोनार्डोस हैप्पीनेस बी चेंज्ड इनटू सैडनेस। और लियोनार्डो की खुशी को दुख में बदला जाए, इस तरह से वो डन जॉन सोच रहा था। फॉर दिस ही मेड ए कॉन्स्पिरेसी। और इसके लिए उसने एक षड्यंत्र बनाया, यानी षड्यंत्र रचा।
He called one of his partners. उसने अपने एक पार्टनर बोरेचियो को बुलाया and asked him to send Hero to Beatrice's room at night under some pretext. और उसने अपने एक पार्टनर बोरेचियो को बुलाया और उससे कहा कि रात को हीरो को किसी बहाने से बेट्राइस के कमरे में भेज दे। When this room is free, जब उसका कमरा खाली होगा तो बोरेचियो makes love to his girlfriend Margaret, hero's maid, in hero's room. और जब उसका कमरा खाली होगा तो बोरेचियो अपनी प्रेमिका मार्गरेट यानी हीरो की दासी, हीरो की सेवका के साथ हीरो के कमरे में प्रेम संबंध बनाए। बोरेचियो एग्री टू दिस, बोरेचियो इसके लिए मान जाता है। और ऑन द अदर हैंड, उधर दूसरी ओर, डन टेल्स दिस स्टेप ब्रदर्स डन पेड्रो एंड क्लॉडियो दैट हीरो इज अनफेथफुल। और उधर दूसरी ओर जॉन अपने सौतेले भाई डन पेड्रो और क्लॉडियो को बताता है कि हीरो बेवफा है, यानी हीरो इज अनफेथफुल, हीरो बेवफा है। एंड ही हैज सीन हर डेटिंग अनदर मैन, और उसने किसी दूसरे आदमी से मिलते जुलते देखा है। एट फर्स्ट both of them do not believe him, लेकिन पहले वे दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। But then he says that if both of them go with him at night, then he can give evidence of this. और इसलिए वह कहता है, लेकिन वह फिर कहता है कि अगर वे दोनों रात को उसके साथ चलते हैं तो वह उसका एविडेंस दे सकता है, यानी प्रूफ दे सकता है, सिद्ध कर सकता है कि हीरो दूसरे व्यक्ति से मिलती जुलती है। एट नाइट John, both of them at night, John, both of them could see the window of hero's room. रात को John उन दोनों को जहां से हीरो के कमरे की खिड़की दिख रही होती है वहां पर ले जाता है। They see from the window that a girl was sitting on the bed, और वे खिड़की से देखते हैं कि कोई लड़की बिस्तर पर बैठी हुई थी। They guess, और वे अंदाजा लगाते हैं that कि she will be a hero, कि वह हीरो ही होगी। Because it was his room, क्योंकि हीरो का वह कमरा है, क्योंकि वह उसका कमरा है। But in reality it was her servant Margaret, लेकिन असल में वास्तविकता ये थी कि वहां पर उसकी सेवका मार्गरेट थी। Just then बोरेचियो comes into the room, और ठीक तभी बोरेचियो कमरे में आता है। and forms of a love affair with Margaret, और मार्गरेट के साथ प्रेम संबंध बनाने का बहाना करता है। डन पेड्रो एंड क्लॉडियो वॉच ऑल दिस फ्रॉम ए डिस्टेंस, डन पेड्रो और क्लॉडियो दूर से यह सब देखते हैं। दे थिंक
और उन्हें लगता है दैट कि हीरो वाज हैविंग एन अफेयर विद अनदर मैन। तो उन्हें लगता है कि हीरो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध बना रही है। सीइंग ऑल दिस, यह सब देखकर क्लॉडियोस हार्ट ब्रेक, क्लॉडियो का दिल टूट जाता है। ही हेट्स द हीरो, और वह हीरो से नफरत करने लगता है। क्लॉडियो एंड हीरो वर गोइंग टू गेट मैरिड द नेक्स्ट डे। अगले दिन क्लॉडियो और हीरो की शादी होने जा रही थी। बट इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, लेकिन भरी सभा में क्लॉडियो एक्यूजेस हीरो ऑफ बीइंग ऑफ बैड कैरेक्टर। हीरो पर कुचरित्र होने का इल्जाम लगा देता है। एंड और ब्रेक द मैरिज, और शादी को तोड़ देता है। ही देन एंग्रीली वॉक्स अवे विद डन पेड्रो, और इसके बाद वह डन पेड्रो के साथ गुस्से में वहां से चला जाता है। हीरो बिकम्स अनकॉन्शियस आफ्टर सीइंग ऑल दिस, हीरो यह सब देखकर बेहोश हो जाती है। द एंटायर फैमिली वाज सरप्राइज्ड बाय क्लॉडियोस बिहेवियर, और सारे परिवार के लोग क्लॉडियो के इस बर्ताव से हैरान थे। ही हैड फुल फेथ इन द गुडनेस ऑफ हीरो, और उन्हें हीरो की अच्छाई पर पूरा यकीन था। सम पीपल सेज, लेकिन कुछ लोग कहते हैं दैट कि दे शुड गिव द फॉल्स न्यूज ऑफ हीरोज डेथ टू क्लॉडियो, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें हीरो की मृत्यु की झूठी खबर क्लॉडियो को देनी चाहिए। सो दैट, ताकि ही इज फिल्ड विद रिपेंटेंस, ताकि वह पश्चाताप से भर जाए। एंड बी ashamed ऑफ योर एक्शंस, और अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए। डिसाइडिंग दिस, यह डिसाइड करके, यह निश्चय करते हुए द न्यूज ऑफ हीरोज फेक डेथ इज गिवन टू क्लॉडियो, यानी यह निश्चय करते हुए हीरो की फेक डेथ की खबर क्लॉडियो को दी जाती है। बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट, लेकिन इसका कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दिस फील्स बीट्राइज विद एंगर, इससे बीट्राइज गुस्से से भर जाती है। एंड शी वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम क्लॉडियो फॉर इंसल्टिंग हर कजिन्स, और क्लॉडियो से अपनी चचेरी बहन की अपमान का बदला लेना चाहती है। शी टेल्स बेनेडिक्ट, वह बेनेडिक्ट से कहती है दैट कि ही इज इनोसेंट एंड इनोसेंट, कि वह यानी हीरो निर्दोष और मासूम है। एंड शी शुड डुअल क्लॉडियो, शुड फाइट एंड किल हिम, और वह कहती है कि वह क्लॉडियो से डुअल करे, यानी युद्ध करे, यानी तलवार युद्ध करे, और युद्ध करके उसे मार दे। बेनेडिक्ट हेजिटेट्स अ लिटिल, लेकिन बेनेडिक्ट थोड़ा हेजिटेट करता है, यानी हिचकिचाता है। बिकॉज, क्योंकि क्लॉडियो वाज हिज वेरी गुड फ्रेंड, क्योंकि क्लॉडियो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। बट when Beatrice confesses her love to him, he agrees, लेकिन जब बीट्राइस उसे अपने प्यार का वास्ता देती है तो वह
इसके लिए तैयार हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, उधर यानी दूसरी तरफ, बोराचियो वाज ड्रिंकिंग एंड टेलिंग हिज फ्रेंड कॉनरेड अबाउट हिज क्राइम। और उधर बोराचियो शराब पीकर अपने दोस्त कॉनरेड को अपने क्राइम के बारे में बता रहा था। तभी ही टेल्स हाउ ही मेड लव टू मार्गरेट इन द डार्क इन हीरोज रूम एंड ब्लेम्ड इट ऑन हीरो। यानी उधर बोराचियो शराब पीकर अपने दोस्त कॉनरेड को क्राइम के बारे में बता रहा था, और वह बताता है कि किस तरह उसने अंधेरे में मार्गरेट के साथ हीरो के कमरे में प्रेम संबंध बनाने का नाटक किया, यानी किस तरह से प्रेम संबंध बनाए और इसका इल्जाम हीरो पर लगा दिया। बट कॉन्सिडेंटली, लेकिन संयोग से, टू पुलिस ऑफिसर्स नेम्ड डॉगबरी एंड वर्गीस ओवरहियर्ड बोराचियोस वर्ड्स। लेकिन संयोग से बोराचियो की ये बातें डॉगबरी और वर्गीस नाम के दो पुलिस ऑफिसर सुन लेते हैं। हु हैड गॉन आउट ऑन नाइट ड्यूटी, जो कि रात की ड्यूटी पर निकले थे। दे अरेस्टेड बोराचियो एंड हिज फ्रेंड, उन्होंने बोराचियो और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था। देन बोराचियो कन्फेस्ड हिज क्राइम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और फिर बोराचियो ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एंड टोल्ड दैट, और बताया कि दिस वाज ए कॉन्स्पिरेसी हेस्ट बाय डन जॉन, और उसने सब कुछ बता दिया कि यह सब डन जॉन द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। इसके बाद एंड, और हीरो वाज कंप्लीटली इनोसेंट, और उसने बताया कि हीरो पूरी तरह से निर्दोष थी। बट क्लॉडियो इज फिल्ड विद डीप सोरो एंड रिमर्स आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, लेकिन क्लॉडियो यह सब सुनकर दुख और पश्चाताप से भर जाता है। बिकॉज, क्योंकि ही वाज टोल्ड, क्योंकि उसे बताया जाता है दैट कि हीरो वाज डेड, क्योंकि हीरो मर चुकी है। नाउ ही वाज ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर हर डेथ, और वह उसकी मृत्यु के लिए खुद को दोषी मान लेता है, खुद को जिम्मेदार मान लेता है। आफ्टर दिस क्लॉडियो आल्सो अपोलोजाइजेस टू लियोनाटोस, और इसके बाद क्लॉडियो लियोनाटो से भी माफी मांगता है। लियोनाटो कहता है दैट कि ही विल फॉरगिव हिम ओनली इफ ही एग्रीज टू टू थिंग्स, यानी लियोनाटो कहता है कि वह उसे तभी माफ करेगा जब वह उसकी दो बातें मानेगा। फर्स्ट, पहली, टेल एवरीवन दैट हीरो इज इनोसेंट, पहली यह कि उसको सबको बताए कि हीरो निर्दोष है। एंड सेकेंडरी, और दूसरी शर्त यह है कि मैरी हीरोज कजिन सिस्टर, और हीरो की चचेरी बहन से शादी कर ले। क्लॉडियो एक्सेप्ट बोथ कंडीशन, क्लॉडियो दोनों शर्तें मान लेता है। द नेक्स्ट डे क्लॉडियो अराइव्स एट द चर्च फॉर द वेडिंग विद हिज मैन, और अगले दिन क्लॉडियो अपने लोगों के साथ शादी के लिए चर्च में पहुंचता है।
but there he sees that not any cousin, लेकिन वहां देखता है कि कोई चचेरी बहन नहीं है, but hero herself was standing there, बल्कि हीरो वहां खुद खड़ी हुई थी। Seeing this, there is no limit to Claudio's happiness. यह देखकर क्लाउडियो की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। Then तभी हीरो tells him everything. तभी हीरो उसे सब कुछ बताती है। He apologizes to her. वह उससे माफी मांगता है। And both of them get married happily. और दोनों की खुशी खुशी से शादी हो जाती है। Then Benedict also proposed marriage to Beatrice. और तभी बेनेडिक्ट भी बीट्राइस को शादी के लिए प्रपोज करता है। She says yes. और वह उस शादी के लिए हाँ कर देती है। And both of them also get married. और उन दोनों की भी शादी हो जाती है, यानी वो दोनों भी शादी कर लेते हैं। Then a messenger comes and informs that Don John has been arrested and put in jail. और तभी एक दूत आकर सूचना देता है कि डन जॉन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। Everyone becomes happy after hearing this. और यह सब सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। After this, इसके बाद the wedding celebration of both the married couples begins with much fanfare. और इसके बाद दोनों जोड़ों की धूमधाम से वेडिंग सेलिब्रेशन शुरुआत यानी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।